لیکن ایمان کی وہ قدرت اور قوت لوگوں کے اندر نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں لوگ اپنا وقت، اپنی ایبیلٹیز خداوند کے لیے سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں ہم ایک نارمل روٹین کے اندر اور ایک ریتم جو ہم نے اپنی زندگی کا اور ایک سرکل جو ہم نے اپنی زندگی کا بنایا ہے، ہماری زندگی اسی محور کے گرد گھوم رہی ہے؟ ہم کیوں اس سے ہٹ کر نہیں کرنا چاہتے؟ یہ بہت ضروری ہے اگر ہم خدا کے ساتھ پیوست ہونا چاہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہ بہت سا پھل لائے گی، اور اس نے اس کے ساتھ اس کا رزلٹ بھی دے دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آج یہ بیٹی خداوند کے ساتھ پیوست نہ ہوتی، دعا کے لیے آواز بلند نہ کرتی، تو نہ جانے آج ہمیں وہ میریکل حاصل نہ ہوتا جو اس کے دعا میں رہنے سے اور خداوند میں پیوست رہنے سے اس کو ملا ہے۔ آئیے اس پیارے خاندان کے لیے زوردار تعریف کریں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا انعام ہے پورے حال میں چاہوں گا کہ ایک آیت میں بولوں گا، اس کے پہلے 2 لفظ، اس کا حوالہ آپ نے صرف اپنا ہاتھ ریز کرنا ہے اور میں جس کو کہوں گا وہ بتائے گا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور انگلش اور اردو میں ایگزیکٹ ورڈ ہونے چاہیے، اس میں ہیرا پھیری نہیں، اپنے الفاظ نہیں، ایگزیکٹ۔ ہاں جی صباحت۔ John 3:16. اوکے۔ For God so loved the world that he gave his only son, whoever believes in him not perish but have eternal life. اردو میں یوحنا 3:16 اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ ایکچولی جب یہ گواہی دے رہی تھی تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ آج ہم اسی بردر کی مسز کے لیے یہ بھیجیں۔ سو آپ ہماری طرف سے اس پیارے خاندان کے لیے آئیے زوردار تعریف کریں۔ ہم چھوٹی سی دعا کریں گے اور کلام کو ریسیو کریں گے۔ ابھی ہم اس سیشن میں پہنچ چکے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کو خالی کریں، تمام خیالات جو دنیاوی طور پر ہیں خدا انہیں پیچھے کر کے مجھے کلام کی حکمت اور قدرت عنایت کرے۔ قدوس 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 رب الفاظ لشکروں کے زندہ آسمانی باپ، ہم خدا تیری حضوری میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ خدا we are nothing Lord Father، لیکن تو سب کچھ ہے خدا، تیرا پاک روح سب کچھ ہے خدا۔ ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں خدا، تیرا کلام سننے سے پہلے خدا، اور جب ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں گے خدا تو یہ کلام ہماری زندگی کے اندر اثر کرے گا خدا، اور پھر 50 اور 60 گنا نہیں بلکہ 100% خدا اس کی تاثیر زندگیوں کے اندر اثر کرے گی خدا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خدا، ہمیں سننے والا دل عنایت کر خدا، تاکہ ہم خدا تیرے کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کر سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ کیا آپ خوش ہیں؟ آج بہت مزے کا سرمن ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے چیزیں وہی پرانی ہوں گی، حوالے بھی جو ہم بچپن سے سنڈے اسکول سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز تھوڑا فرق ہوگا۔ سو ہم الرٹ رہیں، آج ہم خداوند کی حضوری سے جولیاں بھر کر جائیں گے اور یقیناً خداوند برکت دے گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر آنکھ اپنے ہی عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اوروں کا، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اوروں کا۔ سو کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی کی آنکھ کا شدید کیوں دیکھ پر اپنی آنکھ۔ سو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے، اور یاد رکھیے میرے عزیزوں،
जब हम खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं तो कलाम हमें सिखाता है कि जो यस्सु की इज्जत नहीं करते वो दूसरों की भी इज्जत नहीं करते। याद रखिएगा ये बात, ये बाइबल मुकद्दस का निचोड़ है और यस्सु इसी चीज को इस दुनिया में बयान करने के लिए आया था जिसकी अभी तक कलीसियाओं को समझ नहीं लग रही कि यस्सु के आने का मकसद क्या था। उसका मकसद हमारी डिमांड पूरी करना नहीं था, उसका मकसद मुर्दे जिंदा करना नहीं था, उसका मकसद गलियों गलियों में शिफाएं बांटना नहीं था। वो सिर्फ आपको एक दर्स देने के लिए आया था जो सारी दुनिया के लिए था। उसने ये कलाम मुझे और आपको दिया ताकि मैं और आप निकलें और दुनिया के लोगों में उसकी मोहब्बत का पहचान कर सके और लोगों को ऑनर कर सके। सो जो यस्सु की इज्जत करता है वो दूसरों की भी इज्जत करता है, और जो यस्सु की इज्जत नहीं करता वो दूसरों की भी इज्जत नहीं करता। और यस्सु ने क्लियरली कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं भी उनकी इज्जत करूंगा। राइट, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं भी उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी इज्जत नहीं करते वो इस दुनिया के अंदर खज्जल और रुस्वा होंगे। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। सो हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे को ऑनर देना है, और यही जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए मुझे और आपको बचाने के लिए। पुराना अहदनामा जब हम पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर हर जुर्म की सजा का जिक्र हमें मिलता है। तौरा की किताबों के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर हर गुनाह की सजा बयान की गई है। पुराना अहदनामा जिसमें गुनाह अरूज पर था, जिसमें अबलीस की फतह अरूज पर थी, जिसमें मौत की फतह अरूज पर थी कि जिसने गुनाह किया उसको हैंग कर दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक उसको सजा दे दी। लेकिन जब हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जुर्म की सजा नहीं है, बल्कि यहाँ पर माफी का दर्स मिलता है। माफी का सब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नए अहदनामा के अंदर दिया है, जिसका जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8 बाब के अंदर, जब एक औरत ऐन गुनाह में पकड़ी जाती है तो लोग उसे संसार करने के लिए तैयार खड़े हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए यहूदियों ने 3 मंसूबे बनाए थे कि इसे किसी तरह से भी करके राह से हटा दें ताकि माशरे के अंदर जो हम चाहते हैं वो कर सके। पहला रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, मंसूबा बनाया। मत्ती 22 बाब के अंदर उसकी 5 आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए पहला बार उन्होंने उसकी जात पर यह किया, और दूसरा मंसूबा जो बनाया उसका जिक्र यूहन्ना 8 बाब के अंदर, यही बदकार औरत जिसको यीशु के पास लेकर आए और उससे कहने लगे कि आए उस्ताद, लिखा है कि इसे पत्थर मारकर क्या किया जाए, संसार किया जाए, तू इसके बारे में क्या कहता है। ये था दूसरा मंसूबा खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने का। खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, हाँ ठीक लिखा है और मैं भी यही कहता हूं कि पत्थर मारकर संसार किया जाए, लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और यही इस माशरे की तालीम है। और मैंने यही जिक्र किया कि हर शख्स का हाथ जो है वो दूसरे के गिरेबान पर जाता है। हम अपने गिरेबान पर क्यों जानकर नहीं देखते। और एक बड़ी हैरत की बात है जो कलीसियाओं के अंदर है कि हम अच्छे भले पढ़े लिखे होकर खुदा के साथ वफादारी से चलते हुए हम दूसरों के ट्रैप में क्यों आ जाते हैं। ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। फलानी ने मुझे कहा मैं उसके साथ वहां चली गई, उसने मुझे कहा मैं उसके साथ वहां पर चला गया। व्हाट इज दिस। क्या ईमान की सीढ़ियां जिस पर खुदावंद आपको लेकर जाना चाहता है, ये ईमान है हमारा।
کہ ہم بچپن سے خداوند کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی بھی کہتا ہے ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. یہ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے پاؤں جو ہیں خدا نے چٹان پر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چٹان زندہ خداوند یسوع مسیح ہے. اپنی اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کہاں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. میں خدا کے ایمان میں اور کیسے وہ سیڑھیاں بلند کرتا ہوا خداوند کے کلام میں آگے بڑھ سکتا ہوں. جب خداوند یسوع مسیح کے پاس اس عورت کو لے کر آئے اور خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کی کتابوں کو شریعت کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں. منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر ایک کاہن کو لے کر آئے. جب ہم تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ایک کاہن کو لے کر آئے اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے جب وہ کاہن آیا تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انگلی سے زمین پر لکھا کہ تو نے کس وقت کون سا گناہ کیا تھا اور اس نے اپنا سر نیچے ڈالا اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا. پھر ایک فریسی کو لے کر آئے اور فریسی بھی جب سامنے کھڑا ہوا اس نے کہا کہ معاشرے میں میری بڑی عزت ہے اور کلام کو میں بچپن سے جانتا ہوں, شریعت کی کتابیں میں نے حفظ کی ہوئی ہیں. اور جب یسوع کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کے بھی زندگی کے گناہ کہ کون سا وہ وقت تھا, کیا ٹائم تھا, کون سی تاریخ تھی, یسوع نے اس کی زندگی کی ہسٹری اس کے سامنے لکھ کر رکھ دی اور وہ بھی وہاں سے کترا کر واپس چلا گیا. اور اسی طرح لوگ آتے رہے, لوگ دوسروں کے گریبان کو جانتے رہے اور وہاں سے خدا نے جب ان کی اصل اوقات ان کو یاد کروائی تو ایک ایک کر کے وہاں سے سارے نکل گئے اور پورا میدان خالی ہو گیا. اور صرف یہی عورت ہے جو گھٹنوں کے بل ہے اور خداوند سامنے ہے. جو لوگ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پتھروں کو ریزہ ریزہ کرنے والی ہستی آج ہمارے سامنے کھڑی ہے اور وہ زندگی کی چٹان ہمارے سامنے ہے. ہم کس طرح اس چٹان کے سامنے اپنے چھوٹے پتھر لے کر آئے ہیں. سب نے اپنے پتھر پھینکے اور وہ پتھر وہیں پر ڈھیر بن گئے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ کیا تجھے کسی نے بھی پتھر نہیں مارا؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ الزام لگا رہے تھے ان میں سے سارے نکل گئے کیونکہ انہوں نے کلام میں اپنا چہرہ دیکھ لیا تھا کہ میں کیا ہوں اصل میں. جب انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کرتا ہے تو پھر ایمان کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے. ابھی ہم اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں خداوند مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ سفر کٹن ضرور ہے لیکن اس میں مزہ بہت ہے. جب آپ خدا کی بادشاہت کے اندر قدم رکھتے ہیں تو دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. دنیا نہیں چاہتی کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں کیونکہ خدا نے اعلان کر دیا تھا, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور کلام سکھاتا ہے کہ شریعت کی جھولی کے اندر صرف پتھر ہیں, لیکن جب ہم نئے عہد نامے کے اندر آتے ہیں تو یہاں ہمیں ہاتھ خالی ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی کے گریبان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھنا ہے, اپنے گریبان کو دیکھنا ہے. کیا کہیں ایسا پتھر تو نہیں میں نے اٹھایا ہوا جو میری ہی زندگی کے لیے آڑے آ سکتا ہے. سو خدا نے کہا کہ جا بیٹی پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا, کیونکہ یہ فضل کا دور ہے, معافی کا دور ہے اور خدا نے معاف کر دیا. ہم میں سے ہر ایک کو جس نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے یسوع نے معاف کر دیا, چونکہ ہم فضل کے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ سنسار کیا جائے لیکن فضل کہتا ہے کہ معاف کیا جائے. اس نے کہا جا میں بھی تجھ پر حکم نہیں چلاتا. اب یسوع مسیح نے اس کا ایک فارمولا بتایا ہے کلام مقدس کے اندر کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. یعنی جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, اور جنہوں نے ابھی تک یسوع کو نہیں جانا ان پر ابھی بھی سزا کا حکم ہے. کلام کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی سزا کے نیچے ہیں, وہ ابھی بھی شریعت کے متحد ہیں.
सो खुदा हमें सजा नहीं सुनाता, बल्कि वो हमें इस दुनिया में एक एक रूह को बचाने के लिए आ गया। 25,000 के मजमा में भी खुदावंद बचाने के लिए आया। एक औरत के साथ बात कर रहा है सोखार के कुएं पर, वो एक औरत को भी बचाने के लिए आया, वो एक मर्द को भी बचाने के लिए आया। और खुदावंद यीशु मसीह को जहां भी मौका मिला वो इंसान के लिए बचाने का मंसूबा बनाता है। सो मेरे अजीजों, ये औरत जो है पानी भरने के लिए, नॉर्मली जब हम शरीयत की किताबों को पढ़ते हैं तो पानी भरने का वक्त जो है वो शाम का टाइम है, लेकिन ये दोपहर को आई है। दोपहर को क्यों आई है? क्योंकि खुदावंद इसकी जिंदगी के अंदर एक काम करना चाह रहा है। यूहन्ना 4:8 के अंदर लिखा है, एक सादा सा सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने सोखार के कुएं पर किया और उस औरत से कहा कि मुझे पानी पिला। इखलाक का तकाजा ये है कि जब हम किसी से पानी मांगते हैं तो हमें पानी पिलाना चाहिए। हमने बाप इब्राहिम का जिक्र पढ़ा है, जब वो अपने बेटे इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए अपने नौकर को भेजता है जिसका नाम अलीअज़र है, और उसको कहता है कि जा तुझे कुएं पर एक औरत मिलेगी और उससे कहना कि मुझे पानी पिला, और वो तुझे कहेगी कि मैं तुझे भी पिलाता हूं और तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। और वो निकल गया। इज्जत का तकाजा ये है। लेकिन कलाम कहता है कि अलीअज़र जब वहां पर पहुंचा तो उसने एक औरत को देखा जिसका नाम रिबका था, और उसने उसे कहा कि मुझे पानी पिला, और उसने कहा कि ठहर, मैं तुझे भी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। और अलीअज़र जमीन पर झुका और खुदावंद को सजदा किया और शुक्र अदा किया कि जैसा मेरे आका ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, और खुदा ने इसहाक के लिए यही औरत जो है वो तैयार की है ताकि उसकी दुल्हन बने। और अलीअज़र ने आधे तोले की नथ उसके नाक में पहनाई और 5-5 तोले का एक एक कड़ा उसके दोनों हाथों में पहना दिया। और जब उसने देखा तो रिबका ने घर जाकर सारा वाकया बयान किया कि एक बूढ़ा शख्स मिला और उसने ये सोने की नथ और दोनों हाथों में मुझे कड़े पहनाए हैं, और जब उसने मुझसे पानी मांगा तो मैंने कहा कि मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं और तुझे भी पिलाती हूं। लेकिन एक बात मैंने उसमें खास देखी है जो खुदा की तरफ से हो सकती है, कि जैसे ही उसने मुझे वो नथ और वो कड़े पहनाए तो वो सरनगू हो गया और सजदा रेज हुआ और उसने जिंदा खुदा का शुक्र अदा किया। उसने आसमान के खुदा को सजदा किया। ये बड़ी खुशकिस्मत थी रिबका, पानी भरने के लिए गई और दुल्हन बनकर वापस अपने घर चली गई। सो दुल्हन भी किसकी बनी है? जबीउल्लाह की। ये जबीउल्लाह की इसहाक की दुल्हन बनी है, जिस पर खुदा की खास नजर है और जिसके लिए खुदा ने पहले से ही वादा किया था कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का नाम लेकर लोग खुदा से क्या करेंगे? दुआ किया करेंगे। और आज वही हो रहा है। मेरे अजीजों, ये औरत उसे कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांग रहा है? तू कहकर बुलाना, आई थिंक इस दौर के अंदर और उस दौर में भी देखा जाए तो बेइज्जती की बात है, बदइखलाकी की बात है। किसी को तू कहकर के बुलाना कोई अच्छे इखलाक के अल्फाज में नहीं आता। आज भी दुनिया के अंदर बदइखलाक लोगों की अक्सरियत है, जो सही से ढंग से एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। वो बात नहीं होती जब हम किसी के मुंह पर होते हैं तो बड़े अच्छे अल्फाज अपनी जुबान से अदा करते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि उनके दिल के अंदर बदी भरी हुई है। वो हमेशा बदी की बातें और मकारी की बातें करते हैं। सो यीशु ने उससे पानी मांगा और उसने कहा कि तू यहूदी होकर
मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? और यीशु मसीह ने उसे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन्नल्लाहु अतारा पे, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदा की बख्शिश, खुदा की बख्शिश पता क्या है? खुदा की बख्शिश ये है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुदा की बख्शिश। और मेरे अजीजों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत नहीं रखी। कलाम कहता है कि ऐसी मोहब्बत जिसका अदयान आलम में कोई जिक्र नहीं है, जिसका किसी मजहब के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है, और वो मोहब्बत जिंदा खुदा ने मुझसे और आपसे रखी। ये दायरा बहुत वसी है, किसी कौम से भी कोई ताल्लुक क्यों ना रखता हो, खुदा ने कहा क्योंकि जो कोई जिंदा खुदा पर ईमान लाता है उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, आगे दो इनाम है, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये दो इनामात खुदा ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए रखे हैं। इस दुनिया के अंदर हर कबीला, हर उम्मत और हर जितनी भी दुनिया के अंदर आबादियां, बुद्ध मत हो चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो दो इन्हीं इनामात के लिए अपनी जिंदगी इस रोए जमीन पर गुजार रहे हैं। एक, वो हलाक ना हो, कोई भी शख्स हलाक नहीं होना चाहता, और सब लोग चाहते हैं कि वो हमेशा की जिंदगी पाएं, चाहे उनके लिए उनको पूरी पूरी रात पानी के अंदर खड़ा होना पड़े, चाहे उनको जंगलों के अंदर जाना पड़े, चाहे रोजे दुनिया के अंदर हर मज़ाहिब रोजा रख रहा है ताकि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इंसान चाहता है कि वो जहन्नम की आग से बच जाए। और मेरे अजीजों, इन्हीं दो अनामात के लिए दुनिया इस दौड़ में लगी हुई है, लेकिन खुदा ने ऐलान किया है कि उसने अपनी बख्शिश को जारी कर दिया है कि जो कोई उस पर ईमान लाए। और उसने उस औरत से कहा कि तू अगर मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और वो पानी देता कि तेरी जिंदगी के अंदर से भी वो चश्मा जारी हो जाता और तू सारी जिंदगी कभी भी प्यासी ना होती। ईमान गो के जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आता लेकिन महसूस किया जाता है। इसका गो के कोई वजन नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, लेकिन जब ये जिंदगियों के अंदर ईमान का बीज बोया जाता है तो ये पहाड़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम सब मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं। जो पहली बात मैंने कही कि आज लोगों के अंदर हम बचपन से खुदावंद के घर में जा रहे हैं, लेकिन सही यस्सु जो है वो जिंदगियों के अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा? हम यहाँ बात फर्क करते हैं, हम वहां जाकर बात फर्क करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार भी इसी सफ के अंदर खड़े हैं, अपनी जुबान से दो रंगी बातें करते हैं। कलाम में लिखा है कि तुम्हारे मुंह से हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना ही निकलना चाहिए। एक चश्मा से कभी भी दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, लेकिन हमारी जिंदगियां दो तरह के पानी अपनी जिंदगी से जारी कर रहे हैं। सो मेरे अजीजों, हम सब मसीही खानदान के अंदर पैदा हुए हैं और हम सब उस यस्सु पर ईमान रखते हैं। गौर से सुनिएगा, जो हिंदू खानदान के अंदर पैदा होता है वो हिंदू है, और जो मुस्लिम खानदान के अंदर पैदा होता है वो मुस्लिम है। जो बुद्ध मत खानदान के अंदर पैदा होता है वो बुद्ध मत है, और जो सिखों के घर में पैदा होता है वो सिख है, और जो मसीही खानदान में पैदा होता है वो उस वक्त तक मसीही नहीं है जब तक वो अपना जीवन यस्सु को नहीं देता और बपतिस्मा नहीं लेता और आसमान की बादशाहत के अंदर अपने आप को तैयार नहीं करता, वो उस वक्त तक मसीही नहीं है। सो इस सारी रास्तबाजी से गुजरना बहुत जरूरी है। यस्सु ने कहा था कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को क्या करना है? पूरा करना है।
चाहे मसीही खानदान के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन जब इस रास्तबाजी के प्रोसीजर से नहीं गुजरते, हम कभी भी मसीही नहीं हैं। मसीही तब ही होंगे जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेके खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं, और कलाम कहता है तब वो सारी रास्तबाजी को पूरा करेगा जैसे मसीहा ने किया था। और उसने पहला पत्रस 3 बाब उसकी 12 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हुए हैं, मगर बदकरदार खुदावंद की निगाह में है। सिर्फ खुदा के अगर कान लगे हैं तो वो रास्तबाजों की दुआ पर लगे हैं। बेईमानों, बुज़दिलों, घिनौने लोगों को, दो रंगी बातें करने वाले लोगों की दुआ पर उसके कभी भी कान नहीं लगे। क्योंकि हम बड़े फख्र से दुआ करते हैं कि खुदावंद गुनाहगारों की दुआओं को सुनता है, लेकिन गुनाहगार की भी एक लिमिट होती है। जो इंसान अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, जो यहाँ बात फर्क करेगा वहां जाकर फर्क करेगा, उसकी स्टेटमेंट हर वक्त बदलती रहती है, उसके लिए कोई भी निजात का रास्ता खुला नहीं है। उसके लिए ईमान लाना, तौबा करना और खुदा के साथ पेवस्त होना है। और कलाम कहता है अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? कोई खुदा के लोगों के साथ बदी का मंसूबा बनाकर तो देखे, खुदा उसे चट्टानों की तरह रेजा रेजा ना कर दे तो फिर कहे, क्योंकि हम जिंदा खुदा की कौम है। और उसने कहा जो मेरी कौम को छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। इसलिए ईमानदारों, दुआ में, रोजे में और खुदावंद की हजूरी में बढ़े, क्योंकि खुदावंद की नजर और उसके कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे रहते हैं। और ज़बूर में हम गाते हैं रब सचमुच उसदी सुनता है दुआ जो उस तो मांगता है, अपने असीरा नू कदी हकीर ना समझेगा। क्या सुपरनैचुरल पावर है जो खुदावंद की तरफ से रिलीज होती है हमारी जिंदगियों के अंदर, कि वो हमेशा हमारी दुआओं पर अपने कान धरे रहता है, ताकि हम खुदा की हजूरी में, ईमान में और बढ़े। ईमान की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल और एक बड़ी जिंदा तस्वीर जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, पैदाइश 22 बाब उसकी पहली आयत के अंदर हम पढ़े तो वहां पर हमें एक बड़ा खूबसूरत जिक्र मिलता है। बाप इब्राहिम 100 बरस का, उसकी बीवी सारा 99, और खुदा ने इनसे वादा किया कि मैं तेरी कौम को आसमान के सितारों और जमीन की रेत की मानन। और खुदा ने अपना वादा पूरा किया। 100 साल की उम्र में जाकर खुदा ने उन्हें एक बेटा बख्शा जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और खुदा उसे कहता है आजमाने के लिए कि तू अपने बेटे की सोख्तली कुर्बानी दे। सोख्तली कुर्बानी होती है जो जानवर मज़बा के ऊपर, कुर्बानगाह के ऊपर पूरा का पूरा चला दिया जाता था। कुछ कुर्बानियां ऐसी थी जिसमें जानवर के हिस्से रख लिए जाते थे और वो काहिनों, गरीब लोगों, बेवाओं के काम आते थे, उनमें बांटा जाता था। लेकिन सोख्तली कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें पूरा का पूरा मेंढा जो है वो जला दिया जाता है। और खुदावन ने 100 साल बाद जाकर इनकी दुआ को सुना और इनको खूबसूरत बेटा बख्शा जिसका नाम इसहाक रखा। और खुदा ने 8 साल की उम्र में कह दिया कि मैं इसकी कुर्बानी, और कुर्बानी भी क्या डिमांड की है कि सोख्तली कुर्बानी मुझे इसकी चाहिए। खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। क्या खुदा को इब्राहिम की मोहब्बत पर शक था? वो तो उसे खलील कहता है कि ये मेरा दोस्त है, खलील है, मेरे दिल के मुताबिक है, मैं इससे प्यार करता हूं। लेकिन फिर तकाजा क्या कर रहा है कि जो बेटा मैंने तुझे 100 साल की उम्र में दिया है उसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। और उसे आजमाता है। उसने कहा आए इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं, तेरा बेटा इसहाक जो इकलौता है मूरिया के मुल्क में जा और उसे सोख्तनी के तौर पर मेरे हजूर गुजरान दे। और ये इब्राहिम का सफर जो है ये पूरे 3 दिन और 3 रात का है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम हमारी है। ये 3 दिन का सफर करके
زندہ خدا کو ملنے کے لیے یہ خلیل اپنے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے یہاں سے اٹھ کر یہاں آنا بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ ہمیں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں اور خداوند کی حضوری میں کہہ رہا ہوں، ہمیں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم خدا کو ٹائم دینا ہی نہیں چاہتے، جس طرح خدا ہمیں اپنی برکتیں دے رہا ہے۔ کبھی اپنی زندگی پر غور کیا ہے؟ کیا ہم اس لائق تھے جس لائق خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے؟ اگر چرچ کا ٹائم 4 بجے ہے تو آپ کو یہاں 3:45 ہونا چاہیے۔ یہاں ترتیب ہے، کوئی سنجیدگی ہے کہ خدا کے گھر میں ہم نے کرنا کیا ہے، اور لوگ جا کر باہر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع نہیں دیا جاتا۔ بھائی ہم آپ کو کیا خدمت دیں؟ ہمیں تو پنکچویلٹی کا ہی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ خداوند کو آنر کیسے کرنا ہے، خدا کو جو خدا کا ہے کیسے دینا ہے، جو کیسر کا ہے کیسر کو دے، اور جو خدا کا ہے خدا کو دے دے۔ اگر آپ ڈیوٹی 8 گھنٹے 7 گھنٹے کر سکتے ہیں تو وہ اپنا کیسر کو دے رہے ہیں، لیکن آپ زندہ خدا کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ آپ اس کے گھر کب آ رہے ہیں؟ عبادت کا وقت 4 بجے ہے، آپ 4:30 بجے خدا کے گھر میں آ رہے ہیں، اور خدا کہتا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو۔ اور پھر ہمارا کویسچن ہے، ہم کس بات میں؟ ہمارا دھیان صرف ہدیے کی طرف ہے۔ آپ کلام کی روح سے خدا کو اپنا وقت نہ دے کر ٹھگ رہے ہیں، اور خدا آپ سے آپ کا وقت ہی تو چاہتا ہے، اسے دنیا کی دولت سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، جب اپنا ہاتھ کھولتا ہے تو ہر جاندار کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ اپنا نور نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ دنیا کے بے ایمان لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے، لیکن جو زندہ خدا نے ہمیں دی ہے اس کا پرپس صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس کے گھر کے ٹائم کی ویلیو کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب ہم اس کی ویلیو کو سمجھ پائیں گے تو پھر ہماری ایمان کی پہلی سیڑھی ہوگی، پہلا سٹیپ ہمارا ہوگا کہ ہم آگے آگے ایمان میں بڑھیں گے۔ اور جس دن ہم ٹائم پہ آنا شروع ہوں گے، دیکھیں خداوند آپ کی زندگی کے اندر کیا کہتا ہے۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اب یہ سوختنی قربانی کے لیے جا رہا ہے اور اپنے نوکروں سے کہہ رہا ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ کتنے لوگوں کو واپس آنا چاہیے قربانی کے بعد؟ ایک کو واپس آنا چاہیے، ابراہیم کو، کیونکہ وہ اسے سوختنی قربانی کے طور پر لے کر جا رہا ہے۔ اس نے لکڑیاں پتھر چنے، مذبح بنا دیا اور اوپر لکڑیاں چن دیں، اور کہا اپنے نوکروں سے جوانوں سے کہ میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ اصل میں لکھا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اس کا ذکر میں آگے جا کے کرتا ہوں کہ کیوں ابراہیم نے ایسا کہا۔ نوکروں کو وہیں چھوڑ دیا، لکڑیاں اسحاق کے سر پہ اور موریا کے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر یہ موریا کے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، اور وہاں پہ تفاسیر کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو شیطان بی بی سارا کے پاس چلا گیا اور سارا سے جا کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ ابراہیم اسحاق کو لے کر کہاں پر گیا ہے؟ اب دنیا کے مذاہب کہتے ہیں کہ اسماعیل کی قربانی دی گئی۔ اگر اسماعیل کی قربانی دی جاتی تو وہ کس کے پاس جاتا؟ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا، لیکن کس کے پاس گیا ہے؟ سارا کے پاس گیا ہے۔ اور شیطان آ کر اسے کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے ابراہیم تیرے بیٹے کو جو خدا نے اتنی دیر کے بعد دیا ہے کہاں لے کر گیا ہے؟ سوال جس طرح خدا یسوع مسیح کے پاس ہے، جس طرح وہ میرے اور آپ کے پاس آتا ہے، وہ سوال بہت کرتا ہے۔ تو سارا کے پاس آ کر کہنے لگا تو سارا نے کہا مجھے تو کہا ہے کہ ہم سجدہ کر کے واپس آئیں گے۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ سجدہ کرنے نہیں گئے بلکہ تیرے بیٹے کی سوختنی قربانی کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہاں پر آ کر شیطان کو سچ بولنا پڑا کہ اپنے خدا کی مرضی سے خداوند ان کو لے کر گیا ہے،
ताकि वो सोख्तनी कुर्बानी वहां पर गुजरानी। यहाँ अबलीस ने सच बोला है और सारा ने आगे से जवाब दिया, तो फिर खुदा जाने या उसका खलील जाने कि वो उसे कहां पर लेकर गया है। ये है जब आजमाइश आती है तो आपके अंदर कलाम होना चाहिए। ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं कि खुदा ने इतनी देर बाद हमें औलाद दी है और वो भी सोख्तनी कुर्बानी के लिए। उसने कहा नहीं, तू अपना कलाम यहां पर बंद कर और वो खुदा जाने जो उसको लेकर गया है या उसका खलील जाने, उसका दोस्त जाने। और यहां से जब उसको जाड़े पड़ी तो सीधा इब्राहिम के पास चला गया और इब्राहिम से जाकर कहता है, उसके कान में जाकर कहता है कि अगर खुदा ने 100 साल बाद तुझे औलाद दे ही दी है। उसने तो बड़ा शोर मचाया था कि मैं तेरी औलाद को आसमान के तारों की तरह और जमीन की रेत की मानद बनाऊंगा, और एक ही बेटा दिया और उसे भी तू सोख्तनी कुर्बानी के लिए लेकर जा रहा है। वहां से झिड़कियां खाकर यहां पर आया और बाप इब्राहिम के कान में ये बातें करने लगा और एक तरफ उसे खुदा के वो वादे याद दिला रहा है। और बहुत दफा हमें भी खुदा बहुत कुछ देता है, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी के अंदर कंप्लेन्स ही रहती हैं, क्योंकि हम अपनी ब्लेसिंग की तरफ नहीं देख रहे होते। हमें अपनी गिनी चुनी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वही सामने नजर आ रही होती हैं। कभी खुदा की ब्लेसिंग के ऊपर गौर करके देखें कि वो कितना बेनियाज है, वो कैसे अपने आसमान को खोलता है, वो कैसे अपने खजाने को खोलता है, वो कैसे अपना नूर आपकी जिंदगियों के अंदर चमकाता है। इब्राहिम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, जब खुदा ने कहा है कि तेरी नस्ल आसमान के तारों की मानद होगी तो फिर होगी, क्योंकि वो जिंदा खुदा जिंदा करने की कुदरत और ताकत रखता है। अगर मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे भी दूं तो वो उसे जिंदा कर सकता है और इसके वसीला से उसकी औलाद आसमान के तारों के बराबर हो सकती है। अगर उसने कह दिया है तो वो सच है। यहां से भी शर्मिंदा हुआ और रफू चक्कर होकर वहां से भागा। इसहाक के कान में जाकर कहने लगा, उसके कान में कहा, क्या तुझे पता है कि तेरा बाप तुझे कहां लेकर जा रहा है? उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसका एक ही बेटा हूं। और बड़ी देर बाद खुदा ने मेरे बाप की सब दुआ को सुना है। 100 साल लग गए खुदा ने मुझे उनकी गोद में रखा है। क्या तुझे पता है वो कहां लेकर जा रहा है? हाँ, हम मोरिया के पहाड़ पर खुदा को, जिंदा खुदा को सजदा करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, वो तुझे कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। इसको भी सवाल कहता है, कोई सजदा नहीं बल्कि तेरी सोख्तनी कुर्बानी। कहता नहीं, मेरा बाप मुझे प्यार करता है, वो मुझे बहुत प्यार, मेरे लिए अपनी जान निछावर करता है। अबलीस ने कहा, अगर मेरा इतबार नहीं तो अपने बाप से खुद पूछ ले कि लकड़ियां और छुरी तो हैं, लेकिन मेंढा कहां है जिसे हमने कुर्बानी देनी है। मेंढे का क्वेश्चन रेस कर दिया और बाप से बड़े मासूमाना अंदाज में कहने लगा इजहार। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा कि आए बाप। उसने जवाब दिया, है मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां पर है? ये बात अबलीस ने इजहाक के कानों में कही। बहुत दफा वो सरगोशियां हमारे कानों में भी करता है। इसलिए मैंने कहा कि हम जो बेईमान लोग होते हैं वो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं और वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि खुदा सच्ची हजूरी में हमें ठहरने की ताकत देता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम। और इसी तफसीर के ऊपर हदीस लिखी गई जिसमें उन्होंने कहा कि इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश किया गया था। छुरी और आग तो हमारे पास है, लकड़ियां भी हैं, लेकिन मेंढा कहां है? इब्राहिम ने कहा कि यहोवा यरी खुद मुहैया करेगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है और वो मुहैया करेगा। अब अपने ईमान से बताएं कि शैतान के अंदर ये जुर्रत थी कि उसके सामने दूसरा क्वेश्चन रेज करता कि नहीं, खुदा मुहैया नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जानता है कि खुदा मुहैया कर सकता है।
और जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं उनको पता है कि खुदा उनकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा कर सकता है। बेईमान लोग बेइतबारी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ईमानदार जानते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर वो चांद और तारे जिस तरह बेटियों को दिखाता है, खुदा शो कर देता है कि खुदा ना सिर्फ इसे जिंदा करेगा बल्कि इसके एव्स पूरे पाकिस्तान के मसीहियों को जिंदा कर देगा। पूरा नक्शा ब्राइटनेस दिखाई गई कि खुदा अपने लोगों को अपने असीरानों कभी छुड़ेगा नहीं, वो जिंदा खुदा, क्योंकि मेरा और आपका जिंदा खुदा बरकत देने के लिए उसने कहा कि अब खुदा खुद मुहैया करेगा। और अबलीस के अंदर ये दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत, और वहां से भी वो चला गया। जैसा माँ का ईमान है वैसा ही बाप का, और आगे बेटे का भी वैसा ही ईमान है। और जब पूरे खानदान का ईमान हो तो बरकत फिर ही आती है। जब एक भी इनमें ट्रैप होता है तो कभी भी खानदान के अंदर बरकत नहीं आती। बाप के काम क्या हैं और माँ के टशन क्या हैं, आगे बच्चों की करतूतें क्या हैं, फिर लोग दुआ पर दुआ करते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे बाबरकत नहीं हैं। आज लड़के क्यों तालीमी मैदान में ज्यादा नालायक हैं, क्यों पढ़े लिखे लोग नहीं हैं माशरे के अंदर? क्योंकि उनकी करतूतें, उनकी हरकतें ही कुछ और होती हैं। हम अपनी कलीसियाओं के लिए मजबूत चट्टान का रोल अदा नहीं कर रहे। जो बाप करता है वही बेटा, अगर बाप शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है, गुटखा खाता है, तो आगे आने वाली औलाद भी वही करेगी। कभी अच्छी उम्मीद ना रखें, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जो इंसान बोता है वही आने वाले वक्त में काटेगा। सो अपनी अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करें। क्या मैं नशा तो नहीं कर रहा? क्या मैं सिगरेट नोशी तो नहीं कर रहा जिसकी बाबत खुदा ने मुझे मना किया है? और जो माँ के टशन है वही टशन बेटी के भी होंगे। तुम्हें दी गल कौड़ी हुंदी, तुम्हें दी गल कौड़ी हुंदी, सब पुत्रा संग हुंदे। जिवें जिवें दियां मावां हुंदियां ओवें जइयां बेटियां हुंदियां। सो माँ को अपना करैक्टर याद रखना चाहिए कि मैं खुदा के साथ पेवस्त हूं और अपने बेटों को बेटियों को ट्रैप कर रही हूं। पहली तालीमी दर्सगाह माँ की खोद है कि आप अपने बच्चे को सिखा क्या रहे हो। और जब वो वहां से सीख कर बाहर निकलता है तो चाहे दुनिया के अंदर जो शराबी उनको मिले, नशा करने वाले मिले, दुनिया की कोई भी चीज उन्हें ट्रैप नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की है। उसके माँ ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ सारा की तरह वक्त गुजारा है। सो मेरे अजीजों, मोरिया के पहाड़ पर चले गए, लकड़ियां रखी, पत्थर रखे गए, और इसहाक की नजरें मेंढा ढूंढ रही हैं कि मेंढा, खुदा ने कहा है, मेरे बाबा ने कहा है कि खुदा यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा, लेकिन मेंढा कहीं नजर नहीं आ रहा। बाप ने बेटे से सब कुछ करके लकड़ियां चुन के कहा, बाप इब्राहिम ने कहा, बेटे इन लकड़ियों पर लेट जा, मैंने तुझे ही कुर्बान करना है। इसहाक हक रखता था कि अपने बाबा से पूछता कि तूने कहा था कि वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा, अब मुझे क्यों लुटा रहा है? ये उसका हक था। ये ईमान की कमजोरी नहीं थी, वो चुपचाप लेट गया। ये है फर्माबरदारी की मिसाल। अपने बच्चों के अंदर देखें जरा नजर मारकर कि क्या आपके बेटे और बेटियां फर्माबरदार हैं या नहीं। क्या वो आपकी आवाज को सुनते हैं या इग्नोर करते हैं? आज माओ को इस तरफ शार्प होने की जरूरत है। माएं अक्सर दुआ करती हैं कि मेरी बेटी मेरे जैसी हो, लेकिन हम ये दुआ क्यों नहीं करते कि मेरी बेटी यीशु जैसी हो? हम अपनी तारीफ में लगे रहते हैं। कलाम कहता है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बदी और हसद से डर, शेखी की बात कहने से डर। मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे जैसा हो। हम ये क्यों नहीं कहते कि यीशु जैसा हो? और जब यीशु को सामने रखेंगे, जब उसके ऊपर निगाहें होंगी, तो औलाद की सुधार आसमानी मुकामों की तरफ से आएगी। फिर कोई भी चीज आपके बच्चों को ट्रैप नहीं कर पाएगी। इसहाक ने लकड़ियों के ऊपर लेटकर उसको अपने बाबा को कहा कि अब मेरे हाथ पांव बांध दे, और बांध दिए जब,
اور اس نے پھر ایک سوال کیا کہ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لے اور میری آنکھوں پر بھی کیا کر دے، پٹی باندھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری پدرانہ محبت جاگے اور کوتاہی ہو جائے اور پھر میں بھی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاؤں اور اس میں خداوند کو فرما برداری نظر نہ آئے، تیرے ہاتھ نہ کانپ جائیں، تو پٹی باندھ لے دونوں کی آنکھوں پر۔ اور پٹی جیسے ہی اس نے باندھی، چھری پکڑی، بیٹے کی گردن کی طرف بڑھائی تو خداوند کی آواز آئی کہ رک جا، خدا نے مہیا کر دیا ہے۔ اور اس نے نظر چڑھا کر دیکھی تو مینڈا جھاڑیوں کے اندر، کانٹوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کانٹوں کا صحرا خداوند یسوع مسیح کے سر پر تھا، اور خدا نے ابراہیم کے لیے پتہ کیا کہا تھا یسوع نے، کہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کے منتظر میں تھا اور اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ مینڈا جھاڑیوں کے اندر، سینگوں کے اندر، اور ادھر صلیب کے اوپر وہ برا، وہ یہودا کا ببر جو ہے وہ بھی انہی کیلوں کے اندر جکڑا، انہی کانٹوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اور خدا نے ابراہیم کو دکھا دیا کہ میں آنے والے وقت میں اپنی دنیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب اسحاق نے مینڈا دیکھا تو اس نے پکار کر کہا کہ میرے بابا کا خدا زندہ ہے، کیونکہ اس نے مہیا کر دیا ہے۔ وہ جان گیا اور شیطان کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، کیونکہ میرے بابا کے خدا نے جو کہا تھا اس کے خدا نے مہیا کر دیا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے۔ اور میرے عزیزو، اسحاق کے دل میں یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ جب میں لیٹا تھا، چھری میرے گردن پر چل جاتی اور لہو بہتا تو پھر کیا ہوتا۔ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ جس نے میری اور آپ کی خاطر قربان گاہ اور اس کروس پر اپنے اوپر وہ سارے زخم برداشت کیے اور خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، اگر اس کی جگہ آپ ہوتے، جو آپ کی سزا تھی، وہ اس کی سزا نہیں تھی، وہ میری اور آپ کی سزا تھی، اور اگر اس چھری کے نیچے، اس صلیب کے اوپر میں اور آپ ہوتے اور خون کا ایک ایک قطرہ، کبھی سوچا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا، جہاں میرا خون بہنا تھا اس نے اپنا بہا دیا اور مجھے زندگی کا راستہ دکھایا۔ وہ زندہ خدا آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، ان اللہ اطارہ بے، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے وہ کون ہے، اگر تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ابھی یہ زمین پر گھوم رہی ہے، کہتی ہے کہ نہ تیرے پاس بالٹی اور ڈوری ہے اور یہ کنواں گہرا ہے، کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو سامری شو کر رہی ہے اور ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم یعقوب کی اولاد سے ہیں، کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ زمین پر خیالات گھوم رہے ہیں اس کے، کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ کبھی یہودی کبھی سامری بن رہی ہے، اور جس منصوبے سے آئی تھی، شیطانی منصوبہ لے کر، خداوند نے اس کا پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹا دیا۔ اب آگے 15 آیت کے اندر وہ بیان کرتی ہے، عورت نے اس سے کہا اے زندہ خدا مجھے بھی وہ پانی دے تاکہ میں بھی پیوں اور ہمیشہ زندہ رہوں۔ جب وہ آئی اس کے اندر ابلیسی کو اتری، لیکن خدا نے اپنا منصوبہ اس کی زندگی کے اندر رکھ دیا۔ جو یسوع کو نہیں جانتے وہ یسوع کی عزت بھی نہیں کرتے۔ پہلے اسے تو کہہ کر بلا رہی ہے اور اب کہہ رہی ہے کہ آئے خدا مجھے وہ پانی پلا دے۔ جس دن آپ کے اندر پیاس ہوگی، آپ وقت سے پہلے یہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر دعا کریں گے کہ اے خداوند وہ زندگی کا پانی مجھے بھی دے دے تاکہ میں ساری زندگی پیاسا نہ ہوں، دنیا کی خواہشیں میری زندگی کے اندر نہ ہوں۔ کوئی روح القدس کے بغیر یسوع کو خداوند نہیں کہتا، لیکن اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے وہ پانی پلا۔ یسوع نے ایک انوکھا سوال کر دیا کہ جا اپنے شوہر کو بی بلا کر لیا۔ اس نے
यीशु को कहा कि मैं बेशोहर हूँ। उसने कहा हाँ तूने ठीक कहा है, तू 5 शोहर कर चुकी है और छठा जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है, जा अपने शोहर को बुला कर लेकर आ। यीशु ने पूरी सामरी की तरफ ये इशारा किया था कि जो 5 बुतों की पूजा कर रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि जिंदा आसमान की प्रस्तशी वाजिब है। जब सारा हाल खुदा ने उसे सुना दिया तो लिखा है कि वो गड़ा छोड़कर सुखार के कुएं से गांव की तरफ, सुखार की तरफ बढ़ने लगी और जाकर लोगों को दस्तक देने लगी कि उठो, मुझे ख्रिस्तस मिल गया है जिसने मेरी जिंदगी को छुआ है और सारे बंधन तोड़ दिए हैं। उसने मेरी जिंदगी का सारा हाल मुझे बता दिया है। सो जिसके अंदर यीशु आ जाता है वो ना खुद आराम से बैठता है और ना दूसरों को। जब मैं ये सरमन देख रहा था तो मुझे यास्मीन का बार बार चेहरा नजर आ रहा, तो मैंने कहा यास्मीन तो छुट्टी में है, लेकिन शुक्र है खुदा उनका कि आप वो हमारे साथ है। ये यास्मीन चारा वालों को ना तो खुद सोती है ना उन्हें सोने देती है कि आओ खुदा के घर चले। जबरदस्ती कपड़े इस्त्री नहीं है, मैं करके देती हूँ। क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है। खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि कोई भी खुदा के घर से रह ना जाए। ये जाकर शोर करने लगी, वो कहती है हम कैसे मान लें कि मसीहा मिल गया है। उसने कहा मुझे मिल गया है। अब उसने सारे जितने भी सुखार के अंधे लंगड़े लूले थे, उसने कहा अगर यीशु होगा तो वो उन्हें हाथ बढ़ाकर शिफा देगा और वो चंगाई पाएगा, तो हम जानेंगे कि तुझे यीशु मिल गया है। और जब वहां पर गई, सारे अंधे लूले लंगड़े सब वहां पर चले गए और खुदावन की कुदरत ने ऐसा जलाल किया कि वो सारे के सारे चंगाई पा गए। और उन्होंने बयान किया कि अब हम तेरे कहने पर ईमान नहीं लाते, बल्कि अपनी आंखों से देख लिया है कि यही आने वाला मसीहा है जिसकी हम राह देख रहे थे। उसे यीशु मिल गया। इस दुनिया में जिसे यीशु मिल जाता है ये सबसे बड़ी दौलत है। क्या आज मेरे और आपके पास यीशु है? अगर आज तक हम सिर्फ मसीही खानदान के अंदर पैदा हुए हैं, मसीही सही तौर पर नहीं है, राष्ट्रबाजी के प्रोसीजर से नहीं गुजरे, तो हमें उसमें से गुजरना पड़ेगा। जब आपका यीशु गुजरा है तो मैं और आप क्या हैं? मुझे भी उन्हीं राहों से क्या करना है, उसके नक्शे कदम पर चलना है। हम गीतों ज़बूरों में गाते हैं कि हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। और जब वो मसीहा गुजर रहा है तो मुझे और आपको भी खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आपके ईमान को बाप इब्राहिम के ईमान जैसा मजबूत बनाए। इसलिए उसे ईमानदारों का बाप कहा गया और हम उसी की औलाद में से हैं। और याद रखना है कि अगर वो ईमानदारों का बाप है तो हम भी उसी ईमानदार की बेटियां और बेटे हैं। आइए उस ईमानदार के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिसने दुनिया के अंदर प्रवेश कर दिया कि वो जिंदा खुदा जिस पर मैं उम्मीद रखता हूँ, ईमान रखता हूँ, वो यहोवा यानी मेरे लिए मुहैया कर सकता है। और उसने करके दिखाया और शैतान को शर्मिंदा किया। आज वक्त है कि हम शैतान को शर्मिंदा करें, कलाम की कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर लें और शैतान और अबलीसी ताकतों को बता दें कि मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है। मुझे यीशु से कोई दुनिया की चीज जुदा नहीं कर सकती। कोई रिश्ता मुझे यीशु से जुदा नहीं कर सकता। कोई दुनिया की दौलत मुझे, ना तंगी, ना तलवार, ना कोई और चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है, क्योंकि मैंने यीशु की मोहर अपने जिस्म के ऊपर लगा दी है। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए मैं